Hello friends, welcome to the platform of Darshanik. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik, I am not going to discuss with you any technical topic, but I am going to discuss with you not even as any strategy, but I am going to discuss with you a very general issue regarding UPSC coaching industry. Okay, so guys, today UPSC का coaching industry is less of a coaching industry and more it has become a real industry. Okay, and largely there is hardly content being shared. Mostly the masala sensational content is being shared, and that's what I am going to discuss with you this issue and how as an aspirant you need to deal with this issue. So nowadays guys, in UPSC preparation, whenever you are studying online or generally even in offline classrooms guys, there are more YouTubers than the teachers. Okay, mostly this industry has become real industry. Masala content is getting shared more, sensational content is getting shared. या कोई easy चीजें पढ़ाओ so that students will give good review, good feedback. या views आने के लिए, okay, some sensational content या easy content you share or discuss in the class. But guys, this is actually damaging the UPSC aspirants tremendously. Or maybe this is the reason across India बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हैव बीन ड्रॉपिंग सिग्निफिकेंटली. सो गाइज, ये जो ट्रेडिशनल कोचिंग मॉडल है, ओके, इज बीइंग फॉलोड बाय वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस. और जिस तरह से थिंग्स आर हैपनिंग इवन इन ऑनलाइन गाइज, ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आई यूज्ड टू टीच ऑन वन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्यू years back. And when I was discussing with top management of that platform, they have made it very clear that their platform is not a coaching industry. Okay, they are just an online platform that brings together, okay, viewers and content providers. तो इसके लिए if you need to get more views, and that should be the bottom line. So guys, what is more entertaining? Okay, what gets more views? Okay, this sensational content that might be good enough for the views, but that is not going to help you in your UPSC preparation if you are a sincere aspirant. Okay, or mostly guys, this industry, because of this view based platforms, online platforms, has become more of a real industry. Okay, teachers are more of a YouTubers. Okay, और जो कंटेंट भी जो अपलोड हो रहा है, most of this content guys is totally irrelevant with the UPSC. ओके, वो तो रिक्शा में बैठे कोई ड्राइवर अभी कोई पैसेंजर के लिए वेट कर रहा है, ही कैन इवन गो एंड कीप ऑन वॉचिंग दोज वीडियोस या दोज सेंसेशनल कंटेंट. इस टाइप का कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड गाइज. विद दिस कंटेंट यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक एग्जाम. यूपीएससी का कंटेंट इज वेरी टेक्निकल, ओके, क्वालिटेटिवली टफर कंटेंट. अब मैं एक वन टीचर के एक वीडियो देख रहा था. नाउ ही वाज सेइंग इन दैट वीडियो कि कोई अगर एक लड़के को जॉब मिलती है, देन ही मैरीज अनएम्प्लॉयड गर्ल, तो इट्स एज गुड एज दो लोगों को जॉब मिली. बट कोई एजुकेटेड लड़की को जॉब मिलता है, देन दैट एजुकेटेड गर्ल विल नेवर मैरी अनएजुकेटेड बॉय. ओके, वो किसी एजुकेटेड लड़के से ही शादी करेगी. तो फिर इससे फायदा क्या? सो व्हाट आर यू सेइंग कि लड़कियों को जॉब्स ना दे? ओके, क्या ये कंटेंट आप यूपीएससी एग्जाम में लिख भी पाओगे? ओके, इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर स्प्रेडिंग. और अगर यही आर्ग्यूमेंट है तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई एक लड़की को जॉब मिलता है तो घर नहीं संभाल पाएगी, तो उसके लिए स्वीपर, क्लीनर, मेड, कुक, ओके, बच्चे संभालने के लिए केयर टेकर, ये सब लगेंगे उसको. तो एज गुड एज 4 जॉब क्रिएट हो गए. अगर एक लड़की को जॉब मिलता है तो कोलैटरली 4 जॉब क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर तो लड़कियों को ही जॉब देनी चाहिए. सो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीइंग स्प्रेड गाइज इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. और इसलिए यही मुझे बताना है कि हाउ टू फाइंड द कंटेंट विच इज रिलेटेड विथ यूपीएससी. कुछ मैं टेस्ट आपको दूंगा, कुछ पॉइंटर्स, और कोई भी वीडियो सुनने से पहले यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. Okay, these pointers, so you will be able to filter out unwanted masala sensational content, view based content, and you will be able to focus more on a quality content. और इसलिए guys, okay, don't run behind this YouTuber kind of teacher, those who give you sensational data, easy data. Okay, run behind the quality teachers who will give you the real content to study, that will help you crack prelims, that will help you crack mains ka examination. So guys, so the major issue, that is the problem that is happening, that and the topic that I am going to discuss with you is how to find and get the right guidance in UPSC. So guys, UPSC coaching industry is turning into a real industry.
ओके सारा मसाला कंटेंट, व्यू बेस्ड कंटेंट, गेट मोर व्यूज, दैट्स द ओनली एम एंड टारगेट नाउअडेज। ओके और इसकी वजह से क्या होता है, इवन ऑफलाइन कोचिंग में भी गाइस, ओके जो रिव्यूज लिए जाते हैं बच्चों से ना, ऑफलाइन कोचिंग में भी ओके इफ आई गो टू टीच, आई कैन टीच वेरी इजी कंटेंट, और मैं बहुत सारा इजी कंटेंट पढ़ा के बच्चों को भी लगेगा अरे सर ने जो भी पढ़ाया बहुत समझ में आया, बट वो जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, इज इट इवन रिलेवेंट टू द यूपीएससी? ओके इज इट इवन रिलेवेंट टू क्रैक प्रीलिम्स, रिलेवेंट टू क्रैक मेंस? ओके और अगर मैं बहुत टफ कंटेंट पढ़ाऊं जो यूपीएससी की क्वालिटी का हो, यूपीएससी की लेवल का हो, few students might not be able to digest that, they will give you bad feedbacks, and then ये जो मैनेजमेंट है they will say कि आपके फीडबैक ठीक नहीं। ओके और इसी वजह से गाइस ओके जो भी कंटेंट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ओके मोस्टली ये जो कंटेंट है बहुत इजी वाला कंटेंट पढ़ाओ, और जब कोचिंग खत्म हो जाता है बच्चों को समझ में आता है ओके ये तो बहुत इजी वाला कंटेंट था जिसका कोई विद दैट कंटेंट आई एम नॉट एबल टू क्रैक इवन अ सिंगल प्रीलिम का टेस्ट सीरीज के पेपर में भी मार्क नहीं आ रहे, आई एम नॉट एबल टू राइट आंसर्स टू द एसए इथिक्स पेपर। ओके और जनरली मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट कटिंग के नाम पे कोई चीफ फैकल्टी हायर करो जो अभी अभी 1-2 साल से पढ़ाने लगी है। ओके तो फर्क क्या पड़ता है, चीप फैकल्टी मिल रही है, कम पैसे मिल रही है, और वो फैकल्टी आके कुछ इजी चीजें पढ़ा देती है, बच्चों को भी लगता है यार बहुत कुछ इजी पढ़ाया, कुछ सब कुछ समझ में भी आया। ओके ही और शी इज टीचिंग वेरी गुड। ओके बट दैट इज गाइज एक्चुअली कॉस्टिंग यू आर पेइंग ह्यूज मनी। Okay, so when you paid so much of money, you came here to learn UPSC का content, not some real का content, not some masala content. So don't follow such a teachers who teach you easy topics, and don't follow such a teacher, okay, who teach or give this sensational content. Now, how to filter them out, I will tell you in the end. फिर उसके बाद guys, so there are less of a teachers and more of a YouTubers. Okay, जिस तरह से वो ads कर रहे हैं, ओके या जोर जोर से चिल्ला के कोई सेंसेशनल कंटेंट पे बात करके, एंड दैट्स द अनदर प्रॉब्लम विद द कोचिंग इंडस्ट्री। टीचर्स कम है ओके एंड यूट्यूबर्स ज्यादा बन चुके हैं, एंड उसमें भी गाइस सेंसेशनल कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड मोर देन द टेक्निकल कंटेंट, द क्वालिटी कंटेंट। और उसी की वजह से गाइस सो हाउ टू फाइंड एंड फिल्टर आउट सच अ टीचर्स, तो उसी में गाइज वन पॉइंट दैट आई विल टेल यू, और वन इंपॉर्टेंट जस्ट दिस आइडिया यू कीप इन माइंड दैट गाइज कोई भी कैची स्लोगन होना ओके ऑन अ थंबनेल ऑफ एनी वीडियो, ओके डोंट लिसन टू सच अ कैची स्लोगन्स। अब ये कुछ कैची स्लोगन्स है दैट आई केम अक्रॉस, नाउ सी व्हाट दे आर सीइंग। 15 दिन की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स क्लियर, गाइज सालों लग जाते प्रीलिम्स क्लियर करने में। तो कोई टीचर अगर ये बता रहा है उसके थंबनेल पे किसी वीडियो पे कि 15 मिनट्स में कोचिंग क्लियर, ओके डोंट ओके इवन क्लिक ऑन सच वीडियोस, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स नॉट रियलिस्टिक गाइज। ओके कि 15 दिन में कोई यूपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करे। ओके देन गाइज 1 साल में 1 अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक, ओके नो वन कैन गारंटी गाइज। जो ऑलरेडी यूपीएससी के टॉपर्स है, इवन दे अपीयर फॉर द नेक्स्ट ईयर का प्रीलियम अगेन, देयर इज नो गारंटी दे विल बी एबल टू क्लियर द नेक्स्ट ईयर का प्रीलियम्स अनलेस यू टुक आउट अ टाइम एंड स्टडीड एक्सक्लूसिवली फॉर दैट प्रीलियम। तो इसलिए 1 साल में 1 अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक, फिर इस स्ट्रैटेजी से प्रीलियम चुटकियों में निकल जाएगा। ओके यू प्रीलियम चुटकियों में निकल जाएगा, भाई प्रीलियम चुटकी में निकालने की चीज नहीं है। ओके तो इस तरह के कोई भी कैची स्लोगन देके दे जस्ट वांट टू गेट द व्यूज। ओके और मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही लॉजिक रहता है कि जो यूट्यूब पे जिसको ज्यादा व्यूज है, ओके ऐसे टीचर्स को लो, उसकी वजह से फिर क्राउड आएगी। और ये पूरी टर्मिनोलॉजी यूपीएससी के कोचिंग इंडस्ट्री में जो बनी है, हमें इतने प्रोडक्ट बेचने हैं, हमें इतना बिजनेस करना है, इतना मार्केटिंग करना है। ओके और जो ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड कंटेंट जो है दैट हैज बीन टोटली मिसिंग। और इसलिए इस तरह के जो कैची स्लोगन्स है, इस स्ट्रैटेजी से प्रीलियम चुटकियों में निकल जाएगा। भाई यूपीएससी चुटकियों में निकालने की चीज नहीं है, फॉरगेट यूपीएससी, पटवारी की एग्जाम भी चुटकियों में निकलने वाली चीज नहीं है। ओके मेहनत लगती है। ओके और इसलिए जो कंटेंट इस तरह के स्प्रेड कर रहे हैं, ओके स्टे अवे फ्रॉम सच टीचर्स। फिर 5 महीने की तैयारी में यूपीएससी क्रैक। ओके आज तक एक मुझे स्टूडेंट नहीं मिला जिसने ओके 1 साल के सिर्फ 1 साल की प्रिपरेशन की, मतलब प्रीलिम्स से लेके, क्योंकि भाई 1 साल की प्रिपरेशन फिर प्रीलियम मेंस एंड इंटरव्यू का रिजल्ट, वो 1 साल 2 साल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं ना, उनको 2 साल लगते हैं मिनिमम। ओके
1 साल का खुद का सेल्फ स्टडी, फिर प्रीलिम एग्जाम देके अगला रिजल्ट आने तक का आगे के 6, 7, 8 महीने। एंड दैट्स वाई 5 महीने की तैयारी में यूपीएससी क्रैक। ओके, डोंट रन बिहाइंड सच ए कैची स्लोगन्स, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। फिर गाइज मेकिंग इथिक्स केक वॉक। ओके, इस तरह के गाइज इथिक्स इज नॉट अ केक वॉक, ऐसे का पेपर इज नॉट अ केक वॉक। कोई इस तरह के स्लोगन में अगर आपको कोई कंटेंट बेच रहा है, ओके, देन स्टे अवे फ्रॉम सच अ टीचर्स कि मेकिंग इथिक्स केक वॉक और सो ऑन। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू गाइज, ओके, stay away from catchy slogans, catchy content, catchy thumbnails, okay, and look for the real content. Here guys, okay, so what do's and don'ts you need to do to stay away from such a real industry YouTuber teachers, okay, and from this masala sensational content. So first tip I told you, stay away from these catchy slogans and don't mix up entertainment and preparation guys. When you came for UPSC guys, then don't focus on entertaining content, okay, focus more on a preparation के लिए जो जरूरी कंटेंट है। सो एंटरटेनमेंट एंड प्रिपरेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स इन यूपीएससी। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो इतने ऑसम इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट देंगे, तो उनको फॉलो करो। लेकिन उसके लिए किसी यूपीएससी के टीचर को फॉलो कर रहे हो, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो कोई सेंसेशनल कंटेंट के पीछे मत भागो, डोंट मिक्स अप एंटरटेनमेंट एंड प्रिपरेशन, ओके। और ये जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू गेट गुड क्वालिटी कंटेंट, ओके, टफ कंटेंट, देन अवॉइड कैची थंबनेल्स, दैट पॉइंट आई टोल्ड यू। और उसके बाद अब आप जो भी कंटेंट सुन रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पे भी रील देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देख रहे हो, ओके, कोई वीडियो भी ऑनलाइन देख रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, then few things you need to do, some litmus test that you need to apply if you want to stay away from this sensationalism. First thing is guys, ask कि ये जो भी चीज बता रहा है, ये टीचर जो भी चीज डिस्कस कर रहा है इस रील में, इस शॉर्ट में मैं जो भी चीज सुन रहा हूं, ओके, इज दिस कंटेंट इवन रिलेटेड विद द सिलेबस। अब मैं एक देख रहा था, वन टीचर वाज डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स, ओके, कि हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर, ओके, या आज डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़े हैं, ओके, या हाउ हस्बैंड वाइफ में जो झगड़े होते हैं, हाउ टू डील विद दैट। अब हाउ दिस कंटेंट इज इवन रिलेटेड विद द यूपीएससी गाइस, ओके। सो ये जो सारा कंटेंट है, फर्स्ट चीज कोई भी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी ऑनलाइन, जो भी कंटेंट उस रील में, शॉर्ट में आई एम लिसनिंग, इज इट इवन अ पार्ट ऑफ सिलेबस, इज दिस कंटेंट रिलेटेड विद द सिलेबस? इफ इट इज नॉट, देन don't listen to and don't waste your precious time of the preparation, okay। entertaining content सुनने के लिए जिंदगी पड़ी है, तो इसलिए अभी सिर्फ उतना ही कंटेंट विच इज रिलेटेड विद द सिलेबस। तो जो भी कंटेंट दैट यू आर लिसनिंग, is this related with my syllabus? First thing, if not, then skip that content. Doesn't matter how legendary the teacher is, okay, how many years of teaching experience he has, but if it content is not related with your syllabus, okay, don't listen and waste your time, ओके। उसके बाद गाइज यूटिलिटी ऑफ कंटेंट फॉर यूपीएससी। फिर जो भी कंटेंट है, डज इट हैव सम यूटिलिटी, ओके। एंड यूटिलिटी मीन्स गाइज कि वेदर इट इज रिलेटेड विद द सिलेबस, हाउ मच पार्ट ऑफ द सिलेबस इट इज कवरिंग, दैट इफ आई एम लिसनिंग टू दिस वीडियो, मुझे जो वैल्यू गेन होगा, ओके, कितने सिलेबस का कितना पार्ट ये वीडियो कवर कर रहा है। उसके साथ गाइज डिफिकल्टी लेवल, आई टोल्ड यू, फिर इस कंटेंट की डिफिकल्टी लेवल कितनी है, क्वालिटी लेवल कितनी है। अब आई टोल्ड यू, बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री में फिर चीफ फैकल्टी हायर करो, ओके, कोई सोशल इशू के टीचर को भी फिलोसॉफी के ऐसे पढ़ाओ या इथिक्स पढ़ाओ उनसे, या कोई हिस्ट्री का भी टीचर हो तो उनसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाओ। और अगर चीपली अवेलेबल है फैकल्टी, ये जो चीजें चल रही है, और ऐसे लोग आपको बहुत इजी कंटेंट भी देंगे टू रीड और स्टडी ऑनलाइन। और ये जो इजी कंटेंट है गाइज, लेकिन नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स, नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस। तो इसलिए गाइज, अगर यूपीएससी में आए हो आप यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हो, कहीं पे भी स्टडी कर रहे हो, आपको लगा इजी है, यूपीएससी तो हो जाएगा, मेरी सब कुछ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ओके गाइज, देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अगर आप जब यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो और चीजें टफ लग रही है, क्लासरूम में भी जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझने में टफ लग रहा है, किताबें जो भी पढ़ रहे हो समझ में भी टफ लग रही है, ऑनलाइन जो भी शॉर्ट्स वीडियोस रील्स देख रहे हो समझने में टफ लग रहे हैं, ओके, या कोई टीचर जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है समझने में टफ लग रहा है, अगर आपको रिवाइंड करके वीडियो देखने पड़ रहे हैं, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी का कंटेंट।
यू आर लिसनिंग टू यूपीएससी का कंटेंट। और अगर यूपीएससी में कोचिंग क्लास में भी जो पढ़ाया जा रहा है सब इजी इजी समझ आ रहा है, ओके नोट्स में जो पढ़ रहे सब इजी इजी समझ आ रहा है, ओके ऑनलाइन भी जो सारा कंटेंट है इजी इजी है, समझ आ रहा है, देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ये चीज याद रखना, यूपीएससी इज अ टफ नट टू क्रैक। और इसलिए फिर आप अगर हमेशा टफ जोन में ही डील कर रहे हो यूपीएससी के प्रिपरेशन में, ओके सो देन एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग ऑन अ राइट ट्रैक। अब मैं भी अगर किसी मेरे ऑफलाइन क्लास में जाता हूं, आई कैन टीच वेरी इजी कंटेंट, मेरा काम आसान हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट के काउंटर क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं आएंगे, फीडबैक भी मुझे अच्छा मिलेगा, रिव्यू भी अच्छा मिलेगा, ओके बट व्हाट्स द पॉइंट गाइस, देयर शुड बी सम इथिक्स, ओके एज अ टीचर व्हाइल टीचिंग द कंटेंट। और मैं अगर बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ाऊं, आई टोल्ड यू सम स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट, बट देन इफ दे आर नॉट यूपीएससी स्टूडेंट्स, नॉट यूपीएससी मटेरियल, आई शुडंट बी बॉदरिंग अबाउट इट। लेकिन मेरे क्लासरूम में अगर आधे भी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी मटेरियल स्टूडेंट है, देन आई शुड बी गिविंग देम द रियल क्वालिटी कंटेंट, डिफिकल्ट कंटेंट, ओके और मैं जितना ज्यादा डिफिकल्ट, मुझे भी पता बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं फिर यूट्यूब पे थोड़ा सेंसेशनल कंटेंट डालो, ओके इजी वाले कंटेंट डालो, okay but I can upload easy sensational content, but what's the point, okay I don't want to go away from this traditional coaching methods जहाँ पे this is not for entertainment, I'm not making movies, I'm not running any news channel, okay I'm here to give you the content for the UPSC। तो अगर वो content काम का ही नहीं है, then as a teacher then I'm not doing justice to my job, and that's why guys, okay if I upload difficult content then even I will get less views, okay maybe less subscriber, but that's not the issue, okay because guys that content that I wanted to give you should be, or as a teacher I should be giving, should be relevant with the UPSC content, related with UPSC content of a difficulty level, quality level, okay that is significant to crack the UPSC exam। so आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, क्लासरूम में हो या ऑनलाइन कुछ भी पढ़ रहे हो, फर्स्ट इज इट रिलेटेड विद द सिलेबस, जो भी वो चीज डिस्कस कर रहा है टीचर, इज इट रिलेटेड विद द सिलेबस, डज इट हैव एनी यूटिलिटी विद द सिलेबस, इज दैट कंटेंट क्वालिटेटिवली बेटर, ओके इट्स डिफिकल्टी इज बेटर और नॉट, ओके कि जिसकी वजह से मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन में देयर विल बी अ वैल्यू एडिशन और नॉट, ओके यही फिल्टर लगा के सारी चीजें देखो, सुनो, ओके एंड रन बिहाइंड क्वालिटी कंटेंट, डिफिकल्ट कंटेंट, ओके बिकॉज यूपीएससी इज टफ एग्जाम। So only when you study difficult content that your competitors are not going to study, okay, you will be in good position to crack this exam, okay। and उसके बाद guys application orientation, या जो भी content आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, okay, will I be able to use it in my answer writing, will I be able to use this content in my essay writing। मेरे भी classes में I share lot of stories, I tell lot of personal life experiences or examples I give, and I tell them कि ये एग्जाम्पल अगर ऐसा ऐसे आता है, यू कैन यूज इन दैट ऐसे, अगर ये एग्जाम्पल जो स्टोरी है कोई हिस्ट्री की, यू कैन यूज दिस इन योर इथिक्स पेपर। सो ये भी चीज है कि जो भी कंटेंट क्लासरूम में बताया जा रहा है, इज इट, विल आई बी एबल टू राइट इट इन माई एग्जाम, ओके इज इट इवन एप्लीकेबल विथ माई एग्जाम। So remember these 2-3 things guys, okay don't mix up entertainment with your preparation, entertainment is totally different thing। एक घंटा अगर आपको entertainment चाहिए, take a break from your study plan and watch this totally entertaining content, travel bloggers and follow them, but when you are following any UPSC teacher then follow him only for the content, the technical content, the quality content, don't run behind catchy thumbnails। कोई अगर ऐसी catchy thumbnail शेयर ही कर रहा है ना, पहले ही याद रखो, if you are sincere UPSC aspirant, ऐसी catchy thumbnails 5 महीने में UPSC crack, making ethics cakewalk, okay run away from that। if teacher have quality content then he don't have to use these catchy slogans, okay that in UPSC के ट्रेडिशनल कोचिंग इंडस्ट्री में गाइस, ओके अभी जो इतना सारा कोचिंग इंडस्ट्री हैज बिकम मोर मार्केटिंग बेस्ड, लेकिन जो इनिशियल कोचिंग इंडस्ट्रीज था 10 साल पहले, और बहुत सारी फ्यू कोचिंग इंडस्ट्रीज आर देयर हु आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कोचिंग, वहां पे गाइस मार्केटिंग से ज्यादा ओके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ज्यादा होती थी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज्यादा होती थी, okay students used to recommend the students, and if teacher is good guys, okay then students will be his ambassadors, he doesn't have to use this then catchy thumbnails or catchy slogans, so don't run behind those catchy slogans। और and जो भी content दिया जा रहा है क्लासरूम में, okay don't run behind easy content। कोई टीचर easy पढ़ा रहा है, that doesn't and that makes sense to you, that doesn't mean he is a good teacher, okay और कोई difficult पढ़ा रहा है,
Okay, ask him a counter questions, but learn that difficult content. If someone is giving you difficult content, quality content, only that teacher is going to help you crack the exam. And इसलिए whatever you are studying, okay, first question, is it related with my syllabus? Is this content का difficulty level good, quality level good, and is this content applicable for in my UPSC exam? So don't waste your money, don't waste your time running behind that sensational content. Okay, and that's why guys, okay, these are very important years of your life. Okay, and so don't waste, try to follow traditional model of coaching जो भी teachers इसको follow कर रहे हैं. Okay, don't follow those teachers who are more of a YouTubers and less of a teachers. Okay, so follow the real teachers. Now he is a Michael Sandel, he is the professor, Howard professor in of ethics professor in Howard University, and so I really like his way of teaching, content quality. I really admire him, and that's why I have his photograph. And there are many faculties like Wajiram ke Ravindran sir ho ya Mukul Patak sir, they are really, I admire them. Okay, still follow that traditional model of coaching and the quality content that they give, no sensational content, no masala content, that kind of content. And so guys, these are very precious years of your life. Don't run behind YouTubers, don't run behind this sensational content givers. या कोई आपको बहुत सस्ते में courses बेच रहा है, okay, you can listen, you will subscribe to those courses guys. You will spend lot of time listening to that. पैसे तो थोड़े बहुत waste होंगे, लेकिन जो time waste होगा, okay, don't waste your precious time even running behind that sensational and cheap content. अभी I came across one platform guys, जिसके owner was still preparing for the UPSC, and he was, okay, running a very big online platform. So point is, he hasn't, he's still appearing, still a student, but managed to create a good online presence, online platform. Okay, and he was making good business. So students were also subscribing to the courses. But then what is the guarantee of the content quality? Okay, and that's why, okay, the message that I wanted to give you in this lesson guys, UPSC ka coaching industry is turning into real industry. Okay, technical content is getting replaced by sensational content, and there are more of a YouTubers and less of a teachers. Okay, so find right guidance, right mentor, because UPSC mein guys, for success, I have uploaded on my YouTube one video, 33%, 33%, 33% rule of success in UPSC exam. And guys, 33% is your right coaching guidance, 33% your effort, hard work, and 33% is your strategies. Okay, and that's why this 33% right coaching, right guidance, okay, that is very, very important. और इतना जो students are getting flooded, getting hammered with this sensational content, okay, try to follow 4-5 tips that I have give you, okay, and look for the real content. Study hard. These are precious years. Don't waste your time and energy studying something unwanted, and also don't run behind easy content. अगर यूपीएससी में प्रिपरेशन में सब कुछ इजी लग रहा है, then you are studying on a wrong track. Okay, but if you are, whatever you are studying in classroom while doing self study, things appear difficult to you to digest, to understand, okay, then discuss with friends, discuss with your mentors, discuss with your teachers. But if things are difficult, then you are studying on a right track. And यूपीएससी में हर कोई चीज इजी लग रही है, क्लासरूम में भी हर कोई चीज इजी लग रही है, दैट मीन्स वो आपको इजी ही चीजें पढ़ा रहे हैं, ना कि वो चीजें जो यूपीएससी के लिए जरूरी है. ओके, एंड आई कैन डू द सेम. क्लासरूम में भी 3 घंटे में 1-2 घंटे बहुत इजी चीजें पढ़ाओ, 1-1.5 घंटे कुछ नोट्स लिखवा के दो जो मार्केट में प्रिंटेड मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है. 1-1.5 घंटे अगर मैं वो टाइम अगर नोट्स लिखवाने में वेस्ट कर दूं, ओके, इट्स इजी फॉर अ टीचर ऑल्सो. स्टूडेंट्स का भी टाइम पास हो जाता है 1-1.5 घंटे नोट्स लिखने में, और सारा इजी कंटेंट पढ़ाया. व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? ओके, एंड दैट्स व्हाई अब मेरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने इथिक्स का कोर्स लॉन्च किया है. व्हेन आई टीच इथिक्स इन ऑफलाइन मोड, 60 आवर्स में आई हैव टू फिनिश इथिक्स दैट पर्टिकुलर टाइम में, और उसमें भी 10-12 घंटे तो कुछ नोट्स लिखवाने में, PYQs के आंसर लिखवाओ, उसमें आई स्पेंड इन माई ऑफलाइन क्लास गाइज. इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आई हैव डिस्कस्ड इथिक्स दैट 150 आवर्स, okay, only I am teaching the content. Okay, because online platform pe I won't be able to dictate the notes, and that's what guys, actually if I dictate the notes I will be able to eat lot of.
So offline class में when I teach ethics guys, I have to finish this entire paper in 60 hours. उसमें भी डिक्टेशन भी करवाओ. अब गाइस डिक्टेशन करवाने का फायदा क्या है व्हेन ऑलरेडी मार्केट में सारे नोट्स अवेलेबल हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के. ओके, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो पूरा जो कोचिंग का आपका टाइम पीरियड है ओके 60 आवर्स में अगर 10-15 आवर्स आए वेस्ट इन गिविंग और मेकिंग द डिक्टेशन और 40-45 आवर्स में कंटेंट पढ़ाओ. ओके, व्हाट्स द यूज? इट्स अ वेस्ट ऑफ योर मनी ऑल्सो. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू इन माई ऐप क्लासेस गाइज आई डोंट हैव दिस लिमिटेशन कि 60 आवर्स में फिनिश करो. सो इथिक्स का कोर्स ही मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 150 आवर्स का है जिसमें आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट दैट आई थिंक इज रिलेटेड विद यूपीएससी एंड वेरी क्वालिटी डिफिकल्ट कंटेंट इन दोज 150 आवर्स. सो यही चीज आपको फॉलो करनी है गाइज, दैट फॉलो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कोचिंग. ओके, एंड जिसमें फिर ये हैंड रिटन नोट्स या क्लास में जो नोट्स में डिक्टेशन किया जाता है बहुत सारा टाइम गेट्स वेस्टेड इन दैट. रादर प्रीफर टू गेट अ गुड क्वालिटी content from the teacher, okay, rather than wasting time in taking dictations, okay, or learning easy content. And so to conclude this lecture guys, just last tip, if you are preparing for UPSC, okay, and you find it tough exam, okay, then and it gives you a tension that it is difficult to understand, okay, difficult to digest, you are preparing on right track. लेकिन कोई टीचर आपको बहुत इजी कंटेंट दे रहा है एंड टेल्स यू कि 5 महीने यूपीएससी क्रैक और 15 दिन में प्रीलिम्स क्रैक, okay, and making ethics cakewalk and all this, okay, then that content is not related and relevant with UPSC. You will waste your time and energy. So keep in this in mind and don't fall prey to this real industry and to the YouTuber teachers. So thanks for listening. Stay tuned. And also guys, okay, check out my other YouTube lecture, strategy based lecture on Darshanik IAS YouTube channel. Check out my other ethics lectures and previous year के जो essays है UPSC के that I have discussed their structure, how to write essay. So check out all those videos also and stay tuned to UPSC Ethics 4 my Telegram channel to download these notes and download my app Darshanik IAS from link given below in the description. Okay, there you will find my 150 hours comprehensive ethics course and also essay courses. So thanks for listening guys. And